Good morning students. Welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Kaur, your science teacher. How are you students? I hope you all are fine and doing well at your home and going through our video lectures. So children, through this video lectures we are today going to study why do we fall ill. This is the 13th chapter of your science NCERT book. For better understanding children, I suggest you to open your NCERT book so that you can mark the definitions, you can refer to the diagrams and you will be able to understand properly with the help of your book. Okay. So, this chapter why do we fall ill is very interesting and it will help you in your daily life also. Okay, how can you fight or how can you cope up with your illness, etc. So, we are starting this chapter. Students, the topic which we are going to include in this chapter are health and its failure, significance of health, personal and community health, distinction between health and disease free, disease and its causes, acute and chronic diseases and poor health, and the rest of the topic will continue in the next video. So, let us start with it. Students, you must be knowing, you must have heard that somebody says sometimes today I am not feeling well, or your friend is sometimes not feeling well, etc. We talk about our health. So, in general, what is health? Health can be defined as, but the health is not a single, you are not able to perform something or your body is not functioning properly, but actually all of you know that our body is made up of cells. Cells form tissue, all these things we have studied. Tissue combine to form organs, organ system. In this way the whole body is formed and all the systems मिलकर सारे systems हमारी body को पूरा एक proper functioning के लिए help करते हैं. अगर एक भी system हमारा properly work नहीं कर रहा है तो क्या होगा, पूरी body affect करेगी. Suppose your kidney, suppose somebody's kidney is not working well, तो क्या होगा, the blood will not be filtered and the waste या जो harmful toxic materials होते हैं वो हमारी body में deposit हो जाएंगे. सिर्फ एक organ के properly काम नहीं करने से पूरी body affect करेगी. brain पे भी affect करेगा. अगर हमारी body का कोई भी part ठीक से काम नहीं कर रहा होता है या उसमें दर्द है या pain है, कुछ भी है, तो हमारा ध्यान बार बार नहीं जाता है, तो हमारा brain भी वहाँ stuck हो जाता है. We are not able to do all the things properly. तो ये है कि हमारी बॉडी पूरी तरीके से एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में वर्क करती है एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी शुड वर्क प्रॉपरली, तो तभी जाकर हमारी बॉडी ठीक से वर्क करेगी. सपोज वी टॉक अबाउट हेल्थ की हम बात कर रहे हैं, तो नॉट ओनली फिजिकली बट हेल्थ इंक्लूड्स 3 एस्पेक्ट्स. 3 चीज़ें मिलकर हमारी हेल्थ को कंप्लीट करती हैं. दैट इज वी शुड बी फिजिकली फिट, मीन्स ऑल द ऑर्गन्स शुड वर्क प्रॉपरली. We should be socially fit also. I will explain you what is this socially fitness, and we should be mentally fit also. तो physically तो आपको समझ में आया होगा कि how can we be physically fit. Physically fit रहने के लिए बहुत सारे तरीके हैं. Balanced diet, exercise करें, है ना, walk करें, तो we will be physically fit. But if we are not thinking in a proper way or we are not thinking positively for everyone, सबके लिए हम अगर अच्छा नहीं सोचते हैं, मान लो कोई आपके पास में बैठा है या आपकी क्लास में है या आपका कोई फ्रेंड है या फ्रेंड नहीं भी है, पर आप उसके लिए मन में अगर कुछ ऐसा रखते हैं कि विच इज़ नॉट गुड, तो दैट मीन्स यू आर मेंटली अनफिट. ओके, तो मेंटली फिटनेस इज ऑल्सो नेसेसरी, देन ओनली यू विल बी कॉल्ड एज हेल्दी. सो थिंकिंग गुड फॉर एवरीबडी इज मेंटली फिटनेस. Socially fitness, suppose we live together, we study together, when we come to school, we work together and we cooperate each other, तभी जाकर सारे काम होते हैं. अगर हम एक दूसरे के साथ cooperation नहीं रखेंगे, socially means, देखो हम कहते भी हैं human is a social animal, मतलब कि एक दूसरे की मदद से एक दूसरे की हेल्प करते हुए ही पूरा हमारी सोसाइटी चलती है. सपोज आप किसी को cooperate नहीं करते हो, that means you are not socially fit. Okay, so the health, WHO has also given the definition of health that being physically, socially and mentally fit is the health.
So health is a state of being well enough to function well, physically, mentally and socially. The World Health Organization WHO defines health as a state of complete physical, mental and social well-being. So from all the three aspects we should be well, then only we will be called as healthy. Children, you refer to page number 126 for these topics. Now we will be explaining more about disease and health. So disease, just now we talked about health, now we talk about disease. Disease means this word can be broken into two parts, dis and ease. Dis means disturbance and ease means, ease कहते हैं हम comfort को, अगर हमारे comfort में कुछ disturbance है that means we are diseased, ठीक है. तो हमारी जो body की normal functioning है, अगर उसमें हमें कहीं भी परेशानी हो रही है that means we are diseased or it means कि we are not feeling comfortable. So one or more systems of the body will change and they will give rise to symptoms. तो कुछ भी मान लो headache हो रहा है या कहीं swelling आ गई, कहीं pain हो रहा है, तो क्या होगा, ये symptoms होते हैं जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम है. Like symptoms क्या क्या हो सकते हैं, cough, loose motions, pus formation, headache, fever, breathlessness, vomiting, fits, unconsciousness, inflammation, swelling and general effects. तो ये सारे इनमें से कोई भी अगर हमें सिम्टम होता है तब हमें ऐसा महसूस होता है कि वी आर नॉट फीलिंग वेल. तो दीज आर द डिफरेंट सिम्टम्स, वी विल डिस्कस दीज सिम्टम्स लेटर ऑन इन डिटेल ऑल्सो. उससे पहले मैं आपको कुछ और बताती हूँ. जैसे हेल्थ एंड इट्स फेलियर की बात करें, सपोज योर ग्रैंड मदर इज एट होम, डेली शी इज़ गोइंग फॉर वॉक, रोज़ वो घूमने जाते हैं, लेकिन किसी दिन अगर उनको ऐसा लग रहा है कि शी इज़ नॉट एबल टू गो फॉर ए वॉक या उनको कहीं दर्द हो रहा है, मीन्स शी इज़ नॉट फीलिंग वेल. लाइकवाइज सपोज देयर इज़ अ सिंगर, कोई सिंगर है वो डेली बहुत अच्छे से रियाज करते हैं, मतलब प्रैक्टिस करते हैं गाने की या फिर कुछ भी इंस्ट्रूमेंट बजाने की, बट इफ़ दे आर नॉट एबल टू डू दैट रूटीन वर्क दैट मीन्स दे आर नॉट फीलिंग वेल, दैट मीन्स देयर हेल्थ इज इफेक्टेड इन वन और अनदर वे. तो ये तो हुई बात इंडिविजुअल हेल्थ की कि हमें अपनी हेल्थ अच्छी रखनी है तो हमें अपना ध्यान रखना ही है ना. दैट इज़ द इंडिविजुअल कंसर्न अबाउट योर सेल्फ कि हम अपने आप को पूरा हम नीट एंड क्लीन रहते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज करते हैं, प्रॉपर योगा करते हैं या मेडिटेशन करते हैं या किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं. दैट इज़ योर अपनी बात हो गई वो तो. लेकिन पर्सनल हेल्थ के अलावा हमें अपने कम्युनिटी के बारे में भी सोचना ज़रूरी है. तो देयर इज़ अ टॉपिक इन योर बुक, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर आर हेल्थ. तो पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज, अपना ध्यान रखना, अपनी क्लीनलीनेस रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, प्लस कम्युनिटी, अपने आसपास भी हमें हर चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे सराउंडिंग्स शुड बी क्लीन, या हमारे पास में कोई बैठा है या हमारी क्लास में कोई है तो वो भी हेल्दी होना चाहिए, तभी हम हेल्दी रहेंगे. ठीक है. तो इंडिविजुअल इश्यूज़ के अलावा कम्युनिटी इश्यूज़ भी मैटर करते हैं. सपोज यू हैव क्लीन्ड योर हाउस, आपका घर बहुत साफ है, स्वच्छ है, and you have everything very clean, but if your colony is not clean या उसमें कोई ऐसे मॉस्किटोज हैं या कोई ऐसे जर्म्स हैं गंदगी की वजह से जो आपकी हेल्थ को मैटर कर सकते हैं. तो बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज मैटर आर हेल्थ. Now we'll differentiate between healthy and disease free conditions. Healthy means it is a state of complete physical, social and mental well-being, ये हमने पढ़ लिया. Now disease free means that we don't have any discomfort in our body part, हमारी body के किसी भी part में कोई तकलीफ नहीं है, तो वो कहलाएंगे disease free. Second thing, healthy या health is dependent on the individual as well as physical, social and environmental factors. तो हेल्थ पे ये तीनों फैक्टर्स डिपेंड करेंगे, फिजिकल फिटनेस ऑल्सो, सोशल, हमारे आसपास जितने भी लोग रहते हैं वो सब भी हमसे अच्छे से बिहेव करें, देन ओनली वी विल बी हेल्दी. ओके. अनदर थिंग, एनवायरमेंट फैक्टर्स, दैट मीन्स द एनवायरमेंट शुड ऑल्सो बी हेल्दी. हमारा घर है, हमारे घर में रहने वाले लोग हैं, हमसे जिनसे भी हमारा हम जिनके भी साथ रहते हैं वो उन सब का भी हमारे साथ अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, अच्छा बिहेवियर होना चाहिए, देन ओनली वी विल बी हेल्दी. डिजीज फ्री कंडीशन, इट इज स्पेसिफिक टू द इंडिविजुअल लेवल ओनली, है ना. द इंडिविजुअल विल टेक केयर ऑफ इट्स डिजीज. नाउ डिजीजेज आर बेसिकली ऑफ टू
2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द ड्यूरेशन. You can open your page number 178. So on the basis of duration of the disease या उसके effects के हिसाब से हम उसको 2 types में divide कर सकते हैं, acute disease and chronic disease. Now acute disease is the disease which lasts only for a short period of time. थोड़े से दिन में 3-4 days में 5-6 या 8 days में hardly और हम ठीक हो गए, तो that disease will be called as acute disease. For example, common cold. Chronic disease will be such disease, the disease which lasts for a long duration. बहुत समय तक चल रहा है, उसके बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी पर इफेक्ट पड़ रहे हैं. We are not able to go to school or we are not able to do our work in normal way. So that means it is a chronic disease जो कि लंबे समय तक चलेगी. Now let us see the more differences between chronic disease and acute disease. First, number 1, जैसा कि अभी बताया, the acute disease is of short duration whereas chronic disease lasts for many days. ये भी हो सकता है पूरा for the whole life the disease may remain with us. Second point, patient recovers completely after the cure in case of acute disease. ट्रीटमेंट ले लिया हमने 8 दिन का 5 डेज का, जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं दे गिव आवर डोज देते हैं हमको, सपोज 3 डेज का, 3 डेज में ठीक नहीं हुए तो 2 more days 5 डेज में देन यू बिकम ओके. तो दैट इज एक्यूट डिजीज और हम उसका मेडिसिन लेकर पूरी तरह से अच्छे हो जाते हैं, उसका कोई आफ्टर इफेक्ट भी नहीं होता है. बट इन क्रॉनिक डिजीज पेशेंट डज नॉट रिकवर कम्प्लीटली या उससे थोड़ा सा बचने के लिए हमें पूरा जिंदगी भर उसकी मेडिसिन लेनी पड़ सकती हैं, फिर भी उसके कुछ इफेक्ट्स हमको ट्रबल कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज नो लॉस ऑफ वेट और फीलिंग ऑफ टायर्डनेस आफ्टरवर्ड. तो when we are cope up with the disease हमसे ख़त्म हो चुकी है एक्यूट डिजीज़, तो उसके बाद कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई आप बहुत वीक हो गए या आपका वेट लॉस हो गया या उसके बाद में भी आपको कुछ परेशानी कंटिन्यू हो रही है, तो दैट इज़ नॉट केस इन द एक्यूट डिजीज़. बट इन क्रॉनिक डिजीज़ देयर इज़ ऑफन लॉस ऑफ वेट. सपोज ट्यूबरकुलोसिस है, किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो उसकी वजह से उसको लॉस ऑफ वेट हो सकता है, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस हो सकती है एंड द ट्रीटमेंट में लास्ट बहुत समय तक के लिए वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी. मान लो आपको जुकाम हो जाता है, कोल्ड कफ हो जाता है, तो आप हार्डली 1 या 2 दिन की छुट्टी करते हो, है ना, देन यू कम बैक टू योर वर्क. तो देयर इज अ शॉर्ट ड्यूरेशन लॉस ऑफ वर्क एंड एफिशिएंसी भी आपकी 1 to 3 डेज के लिए ही कम होगी, देन अगेन यू आर बैक टू योर वर्क. In case of chronic disease, there is a prolonged loss of work and efficiency. बहुत लंबे समय तक आपका जैसे वेट लॉस हो जाएगा और आपकी एफिशिएंसी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कम हो जाएगी. Now let us see causes of disease. अब causes of disease may be many. बहुत सारे causes हो सकते हैं diseases के. Disease is a condition in which either the functioning or appearance of one or more systems get affected. मीन्स डिजीज़ क्या है, जब हमारी बॉडी के कोई एक पार्ट है या कोई सिस्टम है वो ठीक से वर्क नहीं कर रहा है और उसकी वजह से दूसरे सिस्टम्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं, तो दैट इज़ द डिजीज़. मोस्ट ऑफ द डिजीजेज में हैव मेनी कॉजेज. सपोज आपका हेडेक हो रहा है तो उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं. हो सकता है आपको जुकाम हो रहा हो या आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है या कोई और सीरियस रीज़न भी हो सकता है. सपोज किसी को ब्रेन ट्यूमर है तो वो भी हेडेक का कॉज हो सकता है. तो रादर देन वन सिंगल कॉज लाइक अनक्लीन वाटर, मान लो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो इट मे बी ड्यू टू अनक्लीन वाटर या आपने कुछ ऐसी चीज़ खा ली है बाहर की, बाजार की, विच वॉज नॉट हेल्दी, विच वॉज नॉट प्रॉपर या अच्छे से हाइजीनिक तरीके से नहीं बनी है, तो उसकी वजह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है. नॉट प्रॉपर नॉरिशमेंट, सपोज आप कई बार आप क्या करते हैं जंक फूड कंटिन्यूसली कई दिन तक मान लो आपने जंक फूड खा लिया तो क्या होगा, आपको उससे न्यूट्रिशन तो नहीं मिलेगा, ओके, और उसकी बजाय आपको क्या हो सकता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो सकता है. तो प्रॉपर नॉरिशमेंट इज नेसेसरी, बैलेंस डाइट इज नेसेसरी. और कभी कभी जेनेटिक डिफरेंसेस, कई बार कुछ डिजीजेस हमें पेरेंट्स से मिलती हैं या हमारे जीन्स में, हमारे सेल्स के अंदर कुछ ऐसी कमी हो सकती है, हमारे जीन्स में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम किसी डिजीज़ से हमेशा अफेक्टेड हो सकते हैं.
तो द डिजीज में कॉज ड्यू टू जेनेटिक डिफरेंसेस ऑल्सो एंड जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज। दैट इज द सेम कि जीन्स में कुछ डिस्टर्बेंस, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि कैसे जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज होती हैं। तो ऑल दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द डिजीजेज, इन सब से डिजीजेज आ सकती हैं। बेस्ड ऑन द कॉजेज डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज एंड इन्फेक्शियस डिजीज। अभी देखो डिजीज की हम बात कर रहे हैं, वी ऑल आर फेसिंग अ वेरी बिग प्रॉब्लम, हम पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम हम फेस कर ही रहे हैं, क्या? दैट इज द कोविड-19 की वजह से जो कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको पता लग ही गया होगा कि विच टाइप ऑफ डिजीज इट इज, इन्फेक्शियस या नॉन इन्फेक्शियस। ऑफ कोर्स इट इज इन्फेक्शियस डिजीज, एक से दूसरे को स्प्रेड हो रही है, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज एंड वी विल डिस्कस अबाउट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज ऑल्सो। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज आर दोज डिजीजेज विच आर कॉज्ड बाय infectious diseases, mostly internal and non-infectious causes. तो they are not caused by any agent but internally वो हमारी बॉडी में present हो सकता है, उसका cause या कोई non-infection cause हो सकता है, जैसे कि कैंसर, it is not infected from one person to another, जबकि infectious diseases में क्या होगा, they are caused by some agent। तो वो कुछ भी हो सकता है एजेंट, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोन, as they are transferred from one person to another, therefore they are called communicable disease also। communicate हो रही हैं, वो एक से सब में फैल रही हैं, तो that are infectious या फिर communicable diseases हम उनको कह सकते हैं। Children, some questions are also there in your book, like जो in text question है, तो you should go through those questions। I am reading one of the question for you। State any two conditions essential for good health। Suppose we are talking about conditions which are required for good health, तो आप बता ही सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा कि we should be hygienic, we should eat clean food, we should drink clean water, we should take care of individual health as well as community health। So these are the conditions by which you can keep your good health, okay। Just go through the other questions also and try to find out the answer and you can mark in your book, okay। So we are talking about these two types of diseases। Now let us understand this picture, what it is telling you। ये अभी के जो चल रहा है हमारे आसपास कोरोना के लिए भी ये आपको डायग्राम समझना बहुत ज़रूरी है। Listen, suppose अभी हम सब मास्क यूज़ करते हैं जनरली, है ना, तो क्यों कर रहे हैं हम, वो इससे आपको समझ में आएगा कि सपोज कोई पर्सन आपके पास बैठा है, वो स्नीज छींकता है या ज़ोर से खांसता है, तो क्या होता है, उसके माउथ में से ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं। तो आपने ये भी सुना होगा, हम कहते हैं कि ओवर क्राउडेड एरिया में मत बैठो या प्रॉपर वेंटिलेशन होने चाहिए। वेंटिलेशन मतलब ऊपर जो बने रहते हैं ना फॉर पासिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, या जो वार्म एयर होती है, जो हम एयर को ब्रीद आउट करते हैं, वो कैसी रहती है, वार्म रहती है, तो वो लाइट होकर ऊपर से निकल जाती है, ओके। सो वेंटिलेशंस आर वेरी नेसेसरी इन अ रूम। एंड तो जब भी कोई पर्सन खांसेगा या छींकेगा तो क्या होगा, उसके ड्रॉपलेट्स कुछ दूरी तक जाते हैं। देखो यहाँ दिया है 2 मीटर तक, अगर आप इतने पास में बैठे होंगे फिर तो आपके माउथ में या आपके फेस पर आ सकते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्शियस स्टेज कहलाएगी। इसलिए एक तो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सोशल डिस्टेंस, एंड वी आर वेयरिंग मास्क ऑफ कोर्स। तो स्मॉल ड्रॉपलेट्स तो क्या होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, स्मॉल ड्रॉपलेट्स विल इवेपोरेट और वो वेंटिलेशन के थ्रू निकल जाएंगे, ठीक है। बट और देखो ड्रॉपलेट्स न्यूक्लियाई कैरिड इन एयर करेंट्स फॉर मिनट्स टू आवर, और धीरे धीरे वो निकल जाएंगे। लेकिन अगर कोई पास में बैठा होगा देन इट इज डेंजरस, एंड लार्ज ड्रॉपलेट्स सेटल डाउन टू ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड्स। सो वी शुड कीप डिस्टेंस व्हेन वी आर सिटिंग टुगेदर, okay। So this diagram is showing air transmitted diseases are easier to catch the closer we are to the infected person। So in case of infectious diseases we should not sit closer to each other। However in closed areas the droplet nuclei recirculate, वहीं घूमते रहेंगे वो, and pose a risk to everybody। Overcrowded and poorly ventilated housing is therefore a major factor in the spread of airborne diseases। आपने देखा होगा कोई भी diseases अगर ऐसे घर हैं जो बहुत ही क्लोजली और छोटे छोटे घर रहते हैं ना, जैसे झोपड़ियाँ बनी हुई हैं और बहुत दे आर लिविंग वेरी
क्लोज टू ईच अदर और एक ही घर में बहुत सारे मेंबर्स भी रह रहे हैं, तो क्या होगा, वो ओवर क्राउडेड कंडीशन कहलाएगी एंड द डिजीज विल स्प्रेड वेरी सून टू ईच अदर, एक दूसरे में बहुत जल्दी वो डिजीज स्प्रेड होगी। तो वी शुड बी अवे फ्रॉम द ओवर क्राउडेड एरिया एंड पुअरली वेंटिलेटेड, देन वी कैन एस्केप फ्रॉम दिस टाइप ऑफ डिजीजेस। नाउ व्हेनेवर वी आर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सम इन्फेक्शियस एजेंट्स, तो हमको अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है तो हमारी बॉडी कुछ साइंस या सिम्टम्स शो करती है। जब भी क्या होता है, हमारी बॉडी में कोई बाहर से कोई ये क्या कह सकते हैं, बैक्टीरिया या वायरस, ये सब हमारी बॉडी में जब जाते हैं, एक्सटर्नल एजेंट्स या फॉरेन एजेंट्स व्हेन दे एंटर इनटू आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स करती है। मतलब हमारा ब्लड है या हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है, उसको भगाने की कोशिश करती है, उसको किल करने की कोशिश करेगी कि वी डोंट वांट दिस थिंग इनसाइड आवर बॉडी। तो जब ये फाइटिंग चल रही होती है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडीज हैं वो उन फॉरेन एजेंट से फाइट करते हैं, तो उस वक्त हमारी बॉडी कुछ सिम्टम्स शो करती है। ठीक है, तो ये साइंस एंड सिम्टम्स डिजीज से फाइट, जो हमारे WBC सेल्स होते हैं वो जब फाइट करते हैं, तो वो फाइटिंग की वजह से वो सिम्टम्स हमें निकल कर दिखते हैं। तो साइंस आर द फिजिकल मैनिफेस्टेशन दैट कैन बी फेल्ट, हमें फील होता है कि हमको बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ रहा है या हमें हेडेक हो रहा है या कहीं पेन हो रहा है, कुछ भी, तो ये फील हो सकता है। या इट कैन बी हर्ड, मेजर्ड और ऑब्जर्व बाय द फिजिशियन, जैसे कि या तो हम ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं या हार्ट बीट चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सुनकर या ऑब्जर्व करके पता लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाई ब्लड शुगर इज साइन बिकॉज द फिजिशियन कैन ओनली डिटेक्ट इट बाय डूइंग अ ब्लड टेस्ट। तो ये साइन कहलाएगा। हाई ब्लड शुगर कैसे पता लगाएंगे, वो ब्लड टेस्ट से, तो दिस इज अ साइन। ऑन द अदर हैंड, सिम्टम्स आर व्हाट द पेशेंट एक्सपीरियंसेस। जैसे जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हो रहा है आपको, तो आप बताते हो ना कि सपोज यू आर हैविंग हेडेक, क्या हो रहा है आपको, दांत दर्द हो रहा है, फीलिंग टायर्ड, तो ये क्या है, ये सिम्टम्स हैं जो आपने फील किए और डॉक्टर को बताए। ओके, तो सिम्टम्स आर व्हाट द पेशेंट एक्सपीरियंसेस अबाउट द इलनेस और डिजीज। अब आपको ये नहीं पता है कि टूथ एक क्यों हो रहा है या हेडेक क्यों हो रहा है या टायर्डनेस क्यों हो रही है, दैट वो तो आपको डॉक्टर या तो डायग्नोस करके बताएंगे या वो आपके सिम्टम्स के हिसाब से आपको ये बताएंगे कि अच्छा आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। सपोज आपने कहा कि आपको फीवर आ रहा है बहुत तेज़ और ठंड लग के फीवर आ रहा है, तो ये आपने सिम्टम्स बताए, तो डॉक्टर में कम टू दिस कंक्लूजन कि आपको मलेरिया हो सकता है। बट अगेन फॉर कंफर्मेशन वो क्या करेंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे आपका। ओके, नाउ इफ़ वी आर फेस्ड विद क्रॉनिक डिजीजेज, अगर किसी को क्रॉनिक डिजीजेज हो जाती हैं तो उससे पूरी हेल्थ पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो क्रॉनिक डिजीज एंड पुअर हेल्थ, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्रॉनिक डिजीजेज कैन हैव अ ड्रास्टिक लॉन्ग टाइम इफेक्ट। ड्रास्टिक मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, बहुत ज़्यादा डेंजरस या बहुत ज़्यादा गंभीर कहते हैं जिसको, तो बहुत लंबे टाइम तक के लिए उसका इफेक्ट हो सकता है। क्रॉनिक डिजीजेज डू नॉट रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, इमीडिएटली वो ठीक नहीं होती हैं, एंड आर नॉट क्योर्ड कम्प्लीटली, और पूरी तरह से भी ठीक नहीं होती। दे नीड टू बी मैनेज्ड बाय मेडिकल प्रोफेशनल्स, पूरे टाइम आपको ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। यू शुड हैव टू बी रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर। फॉर एग्जाम्पल, एस्थमा, इट इन्फ्लेम्स एंड नैरोज द एयरवेज एंड कॉजेज रिकरिंग पीरियड्स ऑफ वीजिंग। तो क्या होगा एस्थमा के केस में, आपका जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, इरिटेशन होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, और कई बार ऐसे जब आप सांस लेंगे तो ऐसे वीजिंग साउंड कहते हैं, जैसे घर घर जैसी आवाज़ आएगी, जिसकी वजह से आप ये सिम्टम्स आपके क्या हैं कि एस्थमा हो सकता है। तो ये कैसा डिजीज़ है, इट इज़ अ क्रॉनिक डिजीज़ जो लंबे टाइम तक आपको परेशान कर सकती है। द पर्सन इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म एक्टिविटीज़, अपनी डेली एक्टिविटीज, सपोज वो रनिंग नहीं कर पाएगा, स्विमिंग नहीं कर पाएगा, फुटबॉल नहीं खेल पाएगा, मतलब फिजिकली ही विल नॉट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सच एक्टिविटीज। तो इट मे कॉज एक्सर्शन ऑल्सो। तो दीज आर द chronic disease and how it is related with the poor health. Now what are the different things which influences your health? तो ये कॉमन सी एक पॉइंट्स हैं जो आप ध्यान रख सकते हो हमेशा के लिए आपकी हेल्थ को
अच्छा रखने के लिए. Suppose you should take grains, vegetables, water in enough quantity, nuts, fruits and you should relax. ये नहीं कि रात में बहुत देर तक फ़ोन चेक कर रहे हैं या टीवी देख रहे हैं लेट नाइट तक. तो रिलैक्सेशन या स्लीपिंग फॉर 8 hours इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरीबॉडी. मेडिटेशन, एवरीडे एक्सरसाइज है ना. यू शुड वॉक और रन, लॉन्ग वॉक्स पे जाएं. अर्ली राइज है ना. अर्ली राइज मीन्स टाइम से आपको उठना बहुत ज़रूरी है. सो चिल्ड्रन, ऑल्दो अभी आप लोग घर पे ही सब अपना स्टडी कर रहे हैं, लेकिन यू शुड वेक एंड स्लीप एट प्रॉपर टाइम्स टू मेंटेन योर हेल्थ प्रॉपरली. So children, this was some topics, these were some topics which we discussed in this lecture. The remaining topics we will discuss in the next session. Till then, take care, goodbye, thank you.